تو آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں ہنگامہ آرائی پر ایکشن لے لیا۔ ہلڑ بازی میں ملوث نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے 7 اراکین پر آئندہ احکامات تک اجلاس میں شرکت پر پابندی لگا دی۔ اسد قیصر نے کہا کہ ارکان کے نامناسب رویے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اسپیکر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے واقعے پر اظہار افسوس کیا اور قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں نے پارلیمان کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسپیکر نے کہا غیر پارلیمانی رویے کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں، جس پر بلاول بھٹو نے اسپیکر سے کہا کارروائی ٹھوس ویڈیو ثبوت کی روشنی میں کی جائے، پارلیمان کی توقیر ہر حال میں مقدم رہنی چاہیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن کی بڑی بیٹھک، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ کل اسمبلی میں ہونے والے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، حکومتی وزراء کا رویہ سب نے دیکھ لیا ہے، کل جو ہوا وہ پارلیمان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن تھا۔ بلاول بھٹو اظہار یکجہتی کے لیے آئے، ان کا شکر گزار ہوں، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی ہے، اپوزیشن مل کر حکمت عملی پر عمل درآمد کرے گی۔ جو کل واقعہ ہوا پارلیمان میں، یہ پارلیمان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا۔ اس سے زیادہ طوفان بدتمیزی اور اس سے زیادہ غلیظ گالیاں اور گالی گلوچ، اپنا زبان شرما جائے کوئی ایک لفظ ملانے کے لیے، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جا سکتا کرنا چاہیے ہم نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ہم نے کیا تماشا بنا کر دکھایا ہے۔ تو ابھی میں شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ ابھی ہم بیٹھے تھے اور اسی ایشو پر ہم ڈسکس کیا ہے اور ہم نے ایک پلان کیا اور اس پلان کو انشاءاللہ شہباز شریف قائد حزب اختلاف ہیں، اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس سے وزراء کی کیا عزت رہ گئی؟ وزیر اعظم اپنے وزراء کو بچوں کی طرح ہدایت دیتے رہتے ہیں، وزیر اعظم اس ملک کو چلانے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی شہباز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہتے ہیں ملاقات میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی ہے، مل کر عمل کریں گے، ایکشن سامنے لے کر آئیں گے۔ تاریخ میں اس قسم کا وائلنس حکومتی بینچز جو آپ کے اور اس ملک کے ہر شہری کی قسمت کے فیصلے لے رہے ہیں، ان کا کیا بیہیویئر تھا اور کس طریقے سے اسپیکر صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر کے بگ اپوزیشن مل کے پلان بنا رہے ہیں، فیصلہ لے رہے ہیں، وہ ہم جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ وزیر اعظم صاحب اس ملک کو چلانے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، وہ بچوں کی طرح منسٹرز کو ہدایات دے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب مختلف مسلم لیگ نون کا صدر بھی ہے اور قائد حزب اختلاف ہے، وہ بات کر رہا ہے تو پورا اپوزیشن کے لیے بات کر رہا ہے۔ اگر اس پہ حملے ہوں گے، اگر بجٹ بک قائد حزب اختلاف کی طرف پھینکیں گے تو ان وزیروں کا حیثیت کیا رہے گا عوام کے سامنے؟ اپوزیشن کی طرف سے اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا تو یہ جمہوریت کے لیے برا ہوگا۔ نون لیگ کا احسن اقبال کہتے ہیں کہ کل کے آپریشن کی براہ راست نگرانی وزیر اعظم نے کی۔ سنا ہے کہ اسپیکر کی طلبی اسی لیے ہوئی ہے۔ جب وزراء ہلڑ بازی کر رہے تھے تو اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیوں کیا؟ وہ اس بات کی صفائی دیں گے۔ یہ ہے کہ اسپیکر کی طلبی یہ ہوئی ہے کہ جب ہمارے وزراء ہلڑ بازی کر رہے تھے تو تم نے اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن کیوں کیا؟ وہ اس صفائی دینے گئے ہیں وہاں پہ۔ کل کا جو آپریشن ہوا ہے اس کی براہ راست نگرانی وزیر اعظم نے کی ہے۔ ایک شخص نے پورے پاکستان کے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کی انا کی بھینٹ اس وقت پورے پاکستان کو چڑھایا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ میں کہا کہ جناب اسپیکر، آپ ایک تجربے کار سیاسی کارکن ہیں، سیاسی اختلاف کے باوجود آپ سے احترام کا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ قائد ایوان ہر وقت نفرت اور بدلے کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ کل اسمبلی کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے گئے، آپ کو نہ تو اختیار ہے نہ ہی سرکاری اراکین کے خلاف کارروائی کی اجازت ہے۔ اور نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا اسپیکر قومی اسمبلی کے استعفے کا مطالبہ، کہتے ہیں اسپیکر نے ہاؤس کا تقدس پامال ہوتے دیکھا اور چپ رہے، انہیں اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ پارلیمانی نظام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو استعفیٰ دے کر حکومت کو بتا دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔
नून लीग से खवातीन पार्लियामेंट भी महफूज नहीं रही। पीटीआई की खवातीन को बुरे अलकाबात दिए गए। पीटीआई रहनुमा ज़रताज गुल की शदीद तनकीद के कहा कि नून लीग सियासी नहीं गुंडों की जमात बन चुकी। इनका साबिक वजीर आजम कहता है स्पीकर के मुंह पर जूता मारूंगा। इनकी तरबियत का ठेका हमारे पास नहीं, हमारे लीडर दलील से बात करने की तरबियत देता है। हंगामा आराई में मुलव्वस लीगी अरकान पर 1 साल की पाबंदी लगाई जाए। और पीटीआई रहनुमा मलिका बुखारी कहती हैं कि मेरी ज़ाती तौर पर तज़लील हुई, तज़हीक हुई और तकलीफ भी हुई, मगर हैरानी नहीं हुई क्योंकि नून लीग ने जो किया वो कोई नई बात नहीं है। 3 साल इनकी बातें सुनी, अब इन्होंने खवातीन को मारना भी शुरू कर दिया है। सार्जेंट एट आर्म्स ने अली गौहर बलोच को ऐवान में दाखिले से रोक दिया। दाखिली दरवाजे पर अली गौहर बलोच और सार्जेंट एट आर्म्स में मकालमा हुआ। बात करेंगे अजहर फारूक से। अजहर बताइएगा, क्या इन्हें मालूम नहीं था कि ये मुअत्तल अरकान की लिस्ट में है? जी हाँ, अली गौहर बलोच जो है वो भी उन अरकान की लिस्ट में है जिनको पाबंदी आयद की गई है। जब वो ऐवान में दाखिल होने लगे तो सार्जेंट एट आर्म्स ने उनको रोका कि आपका नाम उस लिस्ट में शामिल है, आप ऐवान में नहीं जा सकते। इस मौके पर अली गौहर बलोच का ये कहना था कि ऐवान में जो वफाकी वजीर परवेज खट्टक, अली अमीन गंदरपुर और शीर मदारी ने भी हंगामा आराई की थी। उन्होंने कहा कि अगर इन वफाकी वज़रा के लिस्ट में नाम है या नहीं है, इस हवाले से स्पीकर से एक बार पूछ की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर ने जानबदारी का मुजाहरा किया है, उनको चाहिए कि वो सबके खिलाफ एक्शन लें। ताम सार्जेंट एट आर्म्स के रोके जाने पर अली गौहर बलोच जो है वो ऐवान में दाखिल नहीं हुए, वापस चले गए। अजहर हमारे नुमाइंदे इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रुकने असम्बली मलिका बुखारी की आंख साया होने का खदशा है। ये कैसे लोग हैं जिनको ख़वातीन की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। फरूख हबीब ने कौमी असम्बली में हंगामा आराई का इल्ज़ाम मरियम सफ्तर पर लगा दिया। बोले मरियम की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी ने तूफान बर्पा करवाया। चचा की तकरीर पसंद नहीं थी इसलिए हमले करवाए गए हैं। इनके पास दलील खत्म होती है तो गालम गलोच पर उतर आते हैं। इन्हें अपनी जबान को लगाम देने की जरूरत है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जामिया मिलिया के करीब कार पर फायरिंग का वाकया पेश आया। वाकया टारगेट किलिंग का बताया जा रहा है। सीसीटीवी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। नज़ीर शाह से मजीद जानेंगे। नज़ीर बताइएगा, मजीद क्या मालूमात हासिल हुई हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका है जामिया मिलिया, जहाँ पर कार पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें एक बिजनेसमैन के बेटे रज़ा जुल्फ़िकार को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जिसकी ARY ने फुटेज हासिल की, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार आ रही है और इसी दौरान उसके पीछे मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान आते हैं और वो बराह रास्त गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और गाड़ी गली में मुड़ती है तो गली में मुड़ने के बाद भी वो गली के अंदर दाखिल होकर उस पर गोलियां मारते हैं। इस हवाले से पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, जिनका कहना है कि इस वाक़े में 99 पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है और चाय वक्फों से उसके कॉल भी मिले और वाक़े की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। और DIG साकिब सुहेल मेमन का भी कहना है कि इब्तिदाई तौर पर वाक़या टारगेट किलिंग का ही लगता है और उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद, जिनको फुटेज में भी देखा जा सकता है, इनकी जानिब से कार्रवाई की गई है और मजीद जो है इस पर तहकीकात का अमल हो जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। सुप्रीम कोर्ट ने क्लिफ्टन कराची में ST प्लॉट्स पर कायम 2 निजी अस्पताल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। दोनों अस्पतालों से असल दस्तावेजात और जवाब तलब। कराची के तमाम ST प्लॉट्स का रिकॉर्ड तलब। DG KDA से कौम के नाम से मंसूब तमाम प्लॉट्स की तफसीलात तलब। प्लॉट्स कब और किसने अलॉट किए, तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अलॉट किए गए ST प्लॉट्स की तफसील मास्टर प्लान की रोशनी में पेश करने का हुक्म। कॉम्स की तामीर केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि समंदर से ज़मीन कैसे निकाली गई, कॉम बनाने का क्या जवाज़ है। DG KDA ने बताया कि कॉम 3 वज़ीर आला ने अलॉट किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि MC के पास क्या इख्तियार है, उन्हें किसने इख्तियार दिया कि जिसे चाहे अलॉट करते रहें। चीफ जस्टिस ने कहा ST तो स्कूल वगैरह होना चाहिए, जहां निजी अस्पताल है वहां सरकारी अस्पताल होना चाहिए था, ये तो कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का नस्ला टावर केस में बड़ा फैसला। अदालत ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। बिल्डर और रिहायशियों की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। हुक्म दिया कि इमारत गैर कानूनी है, गिराई जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में सारी चाइना कटिंग इसी तरह हो रही है। जमीन कुछ होती है, कब्जा इससे ज्यादा कर लिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिंध का तमाम रिकॉर्ड 3 माह में कंप्यूटराइज्ड करने का हुक्म दे दिया। सरकारी अराजी वागुजार कराने और उसे पार्क्स में तब्दील करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने कहा मजीद वक्त हरगिज नहीं दिया जाएगा। रेलवे अराजी पर बुलंदो बाला इमारतें बना दी गई। रेलवे जमीन रेलवे मकासद के लिए दी गई मगर कमर्शियल कर दी गई। रेलवे अपनी सोसाइटीज की सारी जमीन वागुजार कराए। रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज अराजी पर कब्जों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि गुलशन इकबाल रेलवे ट्रैक पर घरों पर घर बना दिए गए। हजार गज के बंगले कौन खाली कराएगा। गुलशन इकबाल रेलवे अराजी पर बहुत बड़ा स्टेशन बनना था। ये सब कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार करार देकर सजा दी गई। आपके मुलाजिमीन ने भी रेलवे जमीन आगे फरोख्त कर दी। रेलवे लैंड से अरबों खरबों रुपए बनाए गए। सेक्रेटरी रेलवे ने एतराफ किया कि 2009 के बाद से सारी तबाही हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का अलादीन पार्क का शॉपिंग सेंटर पेविलियन क्लब खाली कराने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी से 1 हफ्ते में आने हैं। 10 से 12 दिन मजीद दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा किसने इजाजत दी थी दुकानें बनाने की। बच्चों के खेलने की जगह पर शॉपिंग सेंटर क्लब बना दिया। जितनी मशीनरी चाहिए ले जाएं और सब गिराएं। खाली नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कराची में मॉनसून सर पर आ गया है। किसी भी वक्त बारिशें हो सकती हैं। ऐसे में सखी हसन कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ जाने वाली सड़क गंदगी के ढेर और गटर के पानी से भरी पड़ी है। सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। अली बताइएगा। सड़कें कई सालों से आवाम के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। ऐसे कई मुकामात हैं जहाँ की सड़कों के साथ ही नाले भी हैं जो उबल पड़ते हैं तो सड़क पर छुपे गड्ढे भी छुप जाते हैं जिससे खतरात पड़ते हैं एक्सीडेंट्स के। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलंदरिया चौक के करीब जहाँ से रास्ता जाता है अंडा मोड़ की तरफ और ये सड़क देख रहे हैं कई सालों से ऐसी हालत में गटर का पानी यहाँ पे भरा पड़ा है। साथ ही कचरा भी तैरता हुआ दिखाई देता है। इलाका मकीनों से हम बात करेंगे। इतना कचरा है, इतना मतलब सफाई होती नहीं है इस नाले की और हद से ज्यादा मतलब जो है सिर्फ कचरे का ढेर है। गुजरने में भी बहुत परेशानी है इसकी वजह से और लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है इस वजह से। और सफाई तो हो रही है 3 दिन से लेकिन अभी तक ये नाला संभलने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और बारिश से पहले ये हाल है, बारिश में तो इसका नक्शा ही दूसरा हो जाता है बिल्कुल। इंतजामिया काम कर तो रही है, जिस अंदाज से वो काम कर रहे हैं लगता ये है कि मानसून का जो सीजन सर पर है उस वक्त तक ये शायद ये काम मुकम्मल कर पाए या नहीं, ये कब तक कहना मुश्किल होगा। जी, खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।